हेलो एवरीवन। ये बीपीएससी एस्पिरेंट्स जिन्हें मेंस देना है उनका परफॉर्मेंस बेटर हो मेंस में, काफी अच्छे मार्क्स हो ताकि अनंत उनका चयन हो जाए। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बीपीएससी मेंस क्वेश्चन को। उद्देश्य यह है टू डेवलप योर राइटिंग स्किल। चूंकि कम समय में, कम वर्ड्स में आपको बहुत सारी बातें लिखनी होती है। ओके, in less words, in less time, you have to write many things and also to the point. Point ये नहीं कि अधिक इधर उधर की बात है, जिससे कि आपको मार्क्स अच्छा हो सके और एग्जामिनर इम्प्रेस हो सके आपसे, ये जरूरी है। तो चलिए हम एक क्वेश्चन मैं शुरू करता हूं। ये 2025 का ये प्रश्न है और इस प्रश्न को 150 वर्ड्स में लिखना है। प्रश्न को मैं बोल रहा हूं और आप देख भी ले स्क्रीन पे। प्रश्न है ये, द फ्यूजन एनर्जी, ये साइंस टेक का है। द फ्यूजन एनर्जी प्रोग्राम इन इंडिया हैज स्टेडली इवॉल्व्ड ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड्स। Mention India's contributions to the International Fusion Energy Project, International Thermonuclear Experimental Reactor, ITER. What will be the implications of the success of this project for the future global energy? Answer in 150 words. 150 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। तो आप देखिए कि 150 वर्ड्स में लिख रहे हैं। तो शुरू करते हैं। पहला तो इंडिया कंट्रीब्यूशन टू ITER क्या है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन 3, question and now go for the answer. तो इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है ITER, ये पहला पॉइंट है। इंडिया इज वन ऑफ द 7 पार्टनर्स along with, याद रखेंगे, EU, यूरोपियन यूनियन, USA, रशिया, चाइना, Japan and South Korea in the ITER fusion energy project based in France. फिर सुन लीजिए, इंडिया के कंट्रीब्यूशन के बारे में बात हो रही है। तो इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर ITER, याद रखेंगे कि इंडिया इज वन ऑफ द 7 पार्टनर्स along with EU, USA, Russia, Japan, China, and South Korea in the ITER fusion energy project based in France. Next point, the Institute for Plasma Research, IPR, Gandhinagar, is the nodal agency. Remember this fact. The Institute for Plasma Research, IPR, Gandhinagar, is a nodal agency coordinating India's participation. Okay. Third point, this one. India contributes about 9% of the project's hardware and technology. 9% contribution इंडिया का किसमें? towards projects hardware and technology.
Next point, major Indian contributions are manufacturing and supplying the Krafstadt, the world's largest stainless steel vacuum chamber. Next point, supplying vessel shielding blocks, cooling water systems, and diagnostic components. Look at the point carefully. ध्यान देंगे. Developing power supplies, superconducting cables, and remote handling systems. Components are designed and fabricated by Indian industries, showcasing advanced engineering capabilities. Now then come to the next point, implications of ITER's success. First point, demonstrates a clean, virtually limitless and sustainable energy source. Then reduces reliance on fossil fuels and nuclear fission. Next, minimizes greenhouse gas emissions and radioactive waste, क्योंकि फ्यूजन की तुलना में ये अपेक्षाकृत फ्यूजन आपका लेस हानिकारक है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है एज कंपेयर टू द फ्यूजन. फ्यूजन इज ये आपका सेफ है और क्लीन है. ये enhances global energy security and promotes technological innovation. Now understand ये हमारा फ्यूजन क्या है. ये इनफैक्ट I'm talking of the nuclear energy. न्यूक्लियर एनर्जी का मतलब हुआ एनर्जी ड्यू टू द न्यूक्लियस. ये दो प्रकार का होगा. वन इज कॉल्ड fission and another is called fusion, right? Fission energy will be of two types. One is controlled fission, controlled nuclear fission, and another one is uncontrolled nuclear. ओके. अब ये जो अगर कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन है तो दिस इज रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर. एंड अनकंट्रोल्ड है तो दिस इज एटम बम, परमाणु बम. ठीक है, एटम बम. अब देखिए कि पहली बात तो है कि फ्यूजन अधिक सेफ है, अधिक क्लीन है फ्यूजन की तुलना में. लेकिन ये दोनों है क्या और किस सिद्धांत पे है ये हमें एनर्जी देता है. फ्यूजन का मतलब होता है कि मिलना, टू कंबाइन टुगेदर. तो फ्यूजन में क्या होता है कि हल्के न्यूक्लियाई, लाइटर न्यूक्लियाई combine together to give comparatively a big nucleus. Not very big, but comparatively big nucleus. और इससे क्या होता है कि जो भी
ये आपका प्रोडक्ट जो न्यूक्लियस होता है उसकी मात्रा हमेशा कम होती है रिएक्टिंग न्यूक्लियस की तुलना में। जैसे मान लेते हैं कि अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन फ्यूज करता है और बनता है हीलियम, तो अगर हम हाइड्रोजन हाइड्रोजन की मात्रा को जोड़ दें और हीलियम की मात्रा को देखें तो हमेशा जो होगा वो आपका प्रोडक्ट साइड में मास कम होता है। तो ऐसा लगता है कि देयर इज लॉस ऑफ मास, लेकिन लॉस ऑफ मास एक्चुअली होता नहीं है। अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टाइन प्रिंसिपल और द मास एनर्जी इक्विवेलेंस, mass and energy are the same thing, and this apparent loss in mass goes in the form of energy. जो भी मात्रा में कमी होती है जिसको मास डिफेक्ट कहते हैं, आपका डिफरेंस ऑफ द मास बिटवीन द प्रोडक्ट न्यूक्लियाई एंड रिएक्टिव न्यूक्लियाई, तो डिफरेंस होता है, दिस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। और मास डिफेक्ट में यदि हम स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से गुना कर देंगे देन यू विल गेट दिस मच ऑफ एनर्जी। यानी कहने का अर्थ क्या, अगर हम फॉर्मूला को देखें, प्रिंसिपल क्या है एनर्जी मिलने का, तो E इज इक्वल टू डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर जूल। ठीक है, ठीक है, जहां पर E एनर्जी रिलीज, डेल्टा M चेंज इन मास विच इज कॉल्ड मास डिफेक्ट, एंड C द स्पीड ऑफ लाइट in vacuum 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड। C का जो वैल्यू है 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। एनर्जी निकलेगा और यही क्या है स्रोत है एनर्जी का, न्यूक्लियर एनर्जी का जो मेन स्रोत है यही है E इक्वल डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर। इसी से एनर्जी हम कंप्यूट करते हैं। जैसे अगर हम सूर्य जितने भी स्टार्स हैं, सन है, उसमें जो ऊर्जा का स्रोत जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, राइट। और न्यूक्लियर फ्यूजन के आधार पे हाइड्रोजन बम बनता है। तो याद रखिएगा कि न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत पे क्या क्या चीजें हैं, हाइड्रोजन बम का भी जो सिद्धांत है वो न्यूक्लियर फ्यूजन है। और जो भी हमारा स्टार्स का, सन का एनर्जी का स्रोत है वो आपका फ्यूजन ही है ये। ठीक है, अब देखिए हम लोग कि दोनों में एक कंपेयर हम बता देते हैं तो क्लियर हो जाएगा। जैसे यदि हम मान लेते हैं कि हाइड्रोजन न्यूक्लियाई का फ्यूज हुआ, तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन इससे भाग नहीं लेता है, ये न्यूक्लियस भाग टेक्स पार्ट इन दिस रिएक्शन। याद रखिए न्यूक्लियर एनर्जी विशेष तो भी कॉल करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। इसमें क्या होगा हमारा, देखिए कि सपोज करते हैं 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियस कंबाइन करता है, एटम कंबाइन करता है, जिसको प्रोटॉन भी कहते हैं। तो ये आपको मिलेगा, इससे जो कंबाइन करेगा, फ्यूज करेगा, देन आफ्टर फ्यूजन यू विल गेट हीलियम न्यूक्लियस। ठीक है, एंड आल्सो अराउंड 26.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। याद रखिएगा, मतलब कहने का मतलब कि 4 हाइड्रोजन का न्यूक्लियाई अगर आपस में फ्यूज करता है तो हीलियम बनेगा और उसके साथ साथ 26.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी विल रिलीज। ठीक है, ये है हमारा। अब आते हैं हम ये देखते हैं कि फ्यूजन में क्या होता है। तो फ्यूजन में क्या होता है कि बड़ा न्यूक्लियस टूटता है और कंपेरेटिवली आपका स्मॉल न्यूक्लियाई आर फॉर्म। स्मॉल न्यूक्लियाई का मतलब हल्के, और along with each nuclear fusion around 2.5 neutron is released along with the release of the energy around 200 million electron volt। अब देख लीजिए कैसे है ये, इसका देख के बताता हूं। जैसे यूरेनियम
होगा तो उस पर करता हूं मैं। चलिए यहाँ पे इस प्लेस में कर दे रहा हूँ। ये वी आर टॉकिंग ऑफ द फ्यूजन, फ्यूजन के बारे में बता रहा हूँ थोड़ा, ये एडिशनल है, ये जानकारी के लिए आपको कर रहा हूँ। तो फ्यूजन में क्या होगा, जैसे मान लेते हैं एक न्यूट्रॉन है, ये अटैक किया यूरेनियम 92-235 पे। अटैक करने के बाद में कंबाइंड न्यूक्लियस बनता है विच इज अनस्टेबल, और ये फिर टूट जाएगा आपका बेरियम प्लस क्रिप्टन प्लस 3 न्यूट्रॉन प्लस 200 MeV ऑफ एनर्जी, 200। ठीक है। अब बेरियम का जो है हमारा देखेंगे, इसमें ये एटॉमिक नंबर बेरियम का 56 और एटॉमिक मास 144, और क्रिप्टन का जो होता है वो 36 एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक मास जो होता है वो 89। इस साथ मैंने बताया ना 3 न्यूट्रॉन में मिलता है एंड देन 200 MeV ऑफ एनर्जी मिलता है। अब आप देख लीजिए कि क्या होगा, दाहिने में उतना ही हो जाएगा, 4 5 और जोड़ दीजिएगा सबको, 6 4 10 मास को आपका बेरियम 144 है, यहाँ पर 89 है, और 3 न्यूट्रॉन का है, देन 3 यहाँ पे हो गया, जोड़ दीजिएगा तो आपको यू विल गेट 236। यानी कहने का अर्थ है कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी बोथ। तो आप देख रहे हैं क्या कि इसमें ऐसा लगता है कि फ्यूजन प्रोसेस में अधिक एनर्जी मिल रहा है, क्योंकि फ्यूजन में क्या है, पर फ्यूजन हमारा 26.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, और यहाँ पर फ्यूजन जो हमारा 200 MeV है। लेकिन अगर एग्रीगेट आप देखेंगे एनर्जी, हमेशा फ्यूजन प्रोसेस गिव्स मोर एनर्जी देन दैट ऑफ द फ्यूजन प्रोसेस, याद रखिएगा। यदि हम देखें कि हमारा फॉसिल फ्यूल से यदि हम बात करते हैं, तो फॉसिल फ्यूल में यदि हम 1 किलोग्राम 1 kg यूरेनियम 1 kg हम सपोज करते हैं कि यूरेनियम को लेते हैं, और 1 kg हम क्या करते हैं कि कोल को लेते हैं, दोनों का कंबशन कराते हैं, दोनों का दहन कराते हैं। तो आप जान रहे हैं कि 1 kg ऑफ कोल जो होगा उससे जो एनर्जी मिलेगी 10⁷ जूल के लगभग में, और वही 1 किलोग्राम यूरेनियम होगा तो उससे एनर्जी जो मिलेगी लगभग 10⁻14 जूल में मिलेगा। याद रखिए कितना बिग नंबर है ये, 1 kg कोल, इससे मिलेगा 10⁻7 जूल, और 1 kg हमारा ये सपोज करते हैं कि यूरेनियम हम ले लोगे तो इससे जो एनर्जी निकलेगी 10⁻14 जूल। तो आप सोच लीजिए कि न्यूक्लियस के चलते एनर्जी मिल रही है मच बिगर देन दैट ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स, एंड दैट्स व्हाई ये काफी एनर्जी क्राइसिस को मीट करने में ये काफी सहायक हो सकता है हमारा न्यूक्लियर एनर्जी। This is how the two are different, okay? अब कंडीशंस फॉर द फ्यूजन, अब फ्यूजन के लिए क्या करने देख लीजिए। अब मान लेते हैं कि सपोज कीजिए कि एक हाइड्रोजन एटम एंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस अकेला रहेगा तो एटम ही जाएगा ना, एक हाइड्रोजन इधर से, एक हाइड्रोजन इधर से आता है मान लिया जाए। अच्छा, उसको न्यूक्लियस को फ्यूज करना है, न्यूक्लियस को मिलना है। तो आप जानते हैं न्यूक्लियस से प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर 0 होता है और प्रोटॉन पर प्लस होता है, तो चार्ज ऑन द न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जैसे ही आप दो हाइड्रोजन का पास लाइएगा, या कोई भी 2 न्यूक्लियाई को पास लाइएगा, नदी को लाइएगा, तो क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करेगा उनके बीच में, कूलम्ब्स का विकर्षण बल काम करेगा, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट इच अदर। तो लाइक चार्जेस रिपेल करेगा वो, तो जैसे ही आप प्लस प्लस को 2 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई के पास लाइएगा
तो प्लस प्लस के बीच में विकर्षण का बल काम करेगा। तो सच सोच लीजिए, ऐसा लगता है कि कभी क्या होगा, दो न्यूक्लियाई आपस में मिलेगा ही नहीं। ओके, लेकिन ये दो न्यूक्लियाई मिलते हैं, क्योंकि शुरू से कंटिन्यूअस एनर्जी मिल रहा है हम लोग को लगातार, और हमारा जो है ये हाइड्रोजन बम भी बना हुआ है। तो क्या है कि इसका मतलब फ्यूजन की क्रिया हो रही है। तो कैसे हो रही है? इसका मतलब है कि दोनों को बहुत अधिक स्पीड से ले जाया जाए पास में, फास्ट। तो फास्ट स्पीड का मतलब क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी का मान ज्यादा होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी का मान ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ कि वह वो टेम्परेचर उसका बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो याद रखिएगा कि दो न्यूक्लियाई को फ्यूज करने के लिए और जो फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करेगा दो न्यूक्लियाई की फ्यूज करने में, उस फोर्स ऑफ रिपल्सन को ओवरकम करने के लिए लगभग 10⁷ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। 10⁷ डिग्री सेल्सियस इतने टेम्परेचर पर तब जाके क्या होगा, न्यूक्लियाई विल फ्यूज टुगेदर, और उनका जो पोटेंशियल बैरियर होगा हर एक न्यूक्लियस का, हर एक एटम का, उसको तोड़ते हुए दोनों न्यूक्लियस फ्यूज करेगा और तब जाके आपको हीलियम मिलेगा। तो पहला तो हुआ कि हाई टेम्परेचर चाहिए, तो पहला पॉइंट है। कंडीशन क्या है फ्यूजन का? हाई टेम्परेचर, जो मैंने बता दिया। अब हाई प्रेशर भी चाहिए, ब्रिंग्स एटॉमिक न्यूक्लियाई क्लोज एनफ फॉर फ्यूजन। फिर प्लाज्मा स्टेट होना चाहिए। प्लाज्मा एग्जिस्ट एज चार्ज आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। कहने का अर्थ हुआ कि सूर्य में जो भी हमारा जो गैसेज है वो किसमें है? प्लाज्मा स्टेट में, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, टोकमैक्स, ये Garnet set reactors using magnetic fields to confine plasma. Longer confinement improves efficiency. And next point, Q value, ratio of energy output to input. और अगर if Q value is greater than 1, it means net energy gain, याद रखिएगा। फ्यूजन वर्सेस फ्यूजन की बात हम लोग कर ही लिए हैं, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, कि फ्यूजन में मैंने बताया कि न्यूक्लियस का होता है, टूटता है, यानी फ्यूजन स्प्लिट्स हेवी एटम्स, दैट इज द न्यूक्लियस। एक्चुअली यहाँ पे सही वर्ड्स होना चाहिए न्यूक्लियाई। स्प्लिट्स हेवी या न्यूक्लियस, हेवी न्यूक्लियस से यूरेनियम 92-235। और फ्यूजन क्या होता है? लाइटर न्यूक्लियर कंबाइन करता है हाइड्रोजन। फ्यूजन प्रोड्यूसेस मोर एनर्जी, मैंने बोला था पहले, ऐसे मैं बताया था आपको कि पर फ्यूजन 26.7 MeV ऑफ एनर्जी रिलीज, वेयरएज पर फ्यूजन जो होगा 200 MeV। यानी यूरेनियम का जब हम डिसइंटीग्रेशन कराएंगे, यूरेनियम को जो तोड़ेंगे, यूरेनियम का जब फ्यूजन कराएंगे, तो पर फ्यूजन 200 MeV ऑफ एनर्जी मिलेगा। और यदि हम 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई को फ्यूज कराएंगे तो इस स्थिति में 26.7 MeV एनर्जी मिलेगा। तो ऐसा लगता है क्या कि एनर्जी रिलीज इन फ्यूजन इज मच मोर देन दैट ऑफ द फ्यूजन। बात सही है ये एक के लिए, लेकिन अगर टोटलिटी ऑफ द एनर्जी रिलीज इज टेकन इनटू अकाउंट कि समग्र जो होगा, कुल जो कितनी ऊर्जा निकली, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, पाएंगे हम लोग कि फ्यूजन gives more energy than that of the fusion gives more energy than that of the fission. Now, India's roadmap to fusion power, current capability, India's SST-1 tokamak at IPA achieved a plasma confinement of 650 milliseconds, mainly for research.
With international collaboration, India is key partner in ITER France, the world's largest magnetic confinement fusion project, targeting a key value of 10. Next one, next step, SST, Bharat, plan 230 MW megawatt hybrid reactor with a Q of 5 followed by a 250 megawatt demonstration reactor by 2060, Q value 20. Now look at the technological focus. Digital twins for virtual reactor simulation, machine learning to control plasma behavior, then radiation resistant materials for durability, and then superconducting magnets for strong plasma confinement. Then come to global fusion progress. UK, a state prototype by 2040. US, private firms aim for fusion power by 2030. China, fast tokamak achieved plasma confinement for 1066 seconds. Now look at challenges. Chunautia. It challenges high cost and long development timeline, target 2060, limited private sector involvement, then technical hurdles in plasma stability and material endurance, competition from solar and wind energy, uncertain commercial viability compared to existing power sources. Now come to insulin strategic gain. Policy and funding support for mission board like ISRO encourage public-private partnerships in AI, materials and simulations, strengthen global collaboration and scientist training. Next point, focus on indigenous innovation and technology localization, then use fusion research and development to advance defense, space and material sciences. Now to conclude, India's fusion energy roadmap, though long-term and expansive, holds immense technological and strategic promise, aimed at 2060 2060 में. It positions India among global leaders in clean, limitless, future-ready energy research, driving innovation across science, space, and defense sector. That's all for this lecture. Thank you.